Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajat Ali. In this lecture, I will try to explain real numbers. Why do we need real numbers? Okay, and what are the some properties of real number? Okay, first of all, why do we need real numbers? Okay, we need real numbers to solve different types of equation. Okay, we need real numbers to measure physical quantities like time, mass, length, force, distance, displacement, velocity, acceleration, etc. etc. Okay. First of all, what is meant by real number? Okay, real number is any number which can be represented in a number line. Okay, what is number line? Number line is a line which we use to represent real numbers. Okay, how can we define real numbers mathematically? Okay, so real numbers include rational number and irrational number. Okay, mathematically real number represented by R, which is equal to union of rational number and irrational number. Okay, this is the mathematical definition of real number. Real number is the union of rational number and irrational number. Okay, as we know that what is mean by rational number, yeah, what are rational numbers and what are irrational numbers. Okay, and how can we represent real number by using Venn diagram. Okay, as we know that, okay, if we take intersection between rational number and irrational number, rational number and irrational number, as we know that from our previous classes, okay, there will be no common elements between rational number and irrational number. That's why the intersection of real number, the intersection of rational number and irrational number must be equal to empty set. Okay, how can we represent Venn diagram for real number? Okay, so for example, we have a universal set, okay, which is real number. Okay, so real number contain rational number and irrational number. Okay, now how can we represent rational number and irrational number in the form of decimals? Okay, in the form of decimal, as we know that rational numbers are, for example, terminating or non-terminating. Okay, for example, rational number are terminating or non-terminating, just like this. For example, if we have 3.3, okay, this is terminating. If we have, for example, 3.333, just like this. Okay, so rational numbers may or may not be terminating. Okay, कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं. ओके, लेकिन इररेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे. इररेशनल नंबर क्या होंगे, हमेशा नॉन टर्मिनेट. ओके, ऑलराइट. और हमारे पास जो रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, हमेशा टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं. टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट. ओके, अभी जहन में क्वेश्चन आएगा, चलो अगर कहीं पे भी डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर. लेकिन मसला कब होगा, जब आपके पास नॉन टर्मिनेट होगा. तो हमारे पास रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेट हो सकते हैं और इररेशनल नंबर तो हमेशा नॉन टर्मिनेट होते हैं. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू नंबर्स? ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे, जो रेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेट होंगे और रिपीटिंग होंगे. क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, रिकरिंग होंगे. ओके, रिकरिंग मीन जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल 3.333 या फॉर एग्जांपल 1.555, जस्ट लाइक दिस. वी कैन रिप्रेजेंट आल्सो दिस. ओके, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो या p बाई क्यू फॉर्म में होंगे, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो या टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. अगर टर्मिनेटिंग है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट इररेशनल नंबर. ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि रिपीटिंग और रिकरिंग होना जरूरी है, जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस आर द टू एग्जांपल. अभी इस साइड पे आए, फॉर एग्जांपल हमारे पास इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, जस्ट लाइक दिस. और इररेशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है तो हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग. ओके, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो हमारे पास एग्जांपल है पाई
Pi is an irrational number which is equal to 3.14159 up to so on. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए 14159, तो कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे, तो पाई हमारे पास क्या है, एक irrational नंबर है. जस्ट लाइक दैट पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन irrational नंबर. ओके, पाई irrational नंबर, एक्सपोनेंशियल irrational नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 11 irrational नंबर. इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं. तो सिंपल वर्ड में हमारे पास क्या बना कि रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. ओके, इफ वी टेक यूनियन बिटवीन टू सेट्स, ओके, टू सेट्स मीन रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. और रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स जो है इंक्लूड हैं, जस्ट लाइक इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, और all are positive numbers start from 0 1 2 3 up to so on. Just like that natural numbers are start from 1 and up to so on. Okay, so this is all about, for example, real number. अगर हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे. ओके, तो देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट्स. For example, between these two sets, it means that these two sets are disjoint set. Okay, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे. Okay, तो ये हमारे पास सिंपल इसके लिए क्या है, एक वेन डायग्राम है. वेन डायग्राम में हमारे पास यूनिवर्सल सेट की जगह पे क्या है, रियल नंबर. रियल नंबर के अंदर क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे. और फिर रेशनल नंबर के अंदर क्या होंगे, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर. और इरेशनल नंबर के अंदर आपके पास क्या होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, पाई एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11 अप टू सो ऑन. Now, how can we represent real numbers? Okay, we can represent real number by using real number line. Okay, what is real number line? Real number line is a line which consists of positive real numbers and negative real numbers. Okay, the origin of the real number line is 0. Okay, right side हमारे पास क्या होगा, positive numbers. Okay, real numbers. और left side हमारे पास क्या होगा, minus negative real numbers. Okay, if we divide, okay, all the number lines into one unit, okay, just like this 1 2 3 4. तो पॉजिटिव साइड पे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. okay, these all are integers. Okay, if we have rational number, okay, then how can we represent in a number line? Okay, just like this, between 1 and 2. for example, यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर होगा, for example 1/2, just like that. okay, हमारे पास इस साइड पे क्या होगा, -1/2. okay, for example, as we know that there are two types of fraction. okay, proper fraction and improper fraction. okay, proper fraction means if we have any number which is in the form of p/q, okay, where q is not equal to 0. अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है p/q फॉर्म में है और q जो है वो 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो क्या होगा, अनडिफाइन होगा. ओके, तो अगर हमारे पास जो है p जो है वो क्या हो जाए, अगर q से हमेशा क्या है, स्मॉलर है, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 5/7. ओके, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन इन नंबर लाइन. तो 5/7 मींस जब भी हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, स्मॉलर होगा. ओके, तो ये हमेशा हमारे पास 0 और 1 के बीच में आएगा. ओके, अभी देखिए 0 और 1 के बीच में 5/7 कहां पे आएगा, अगर ये हमारे पास 0 है और अगर ये क्या है, 1 है, तो 5/7 कहां पे आएगा. तो सबसे पहले 5/7 मींस कि हमने इस 1 यूनिट को क्या करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जस्ट लाइक दिस. ओके, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 7 हो गया. ओके, अभी क्या करना है, हमने 0 से 1 के बीच में 5 फ्रैक्शन टाइम्स क्या करना है, फॉरवर्ड मूव करना है. तो 1 2 3 4 5, तो 5/7 कहां पे है, यहां पे है. तो अगर हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, चाहे कितना बड़े से बड़ा है ना. ओके, अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है. ओके, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा. अगर नेगेटिव है तो माइनस, फॉर एग्जांपल 5/7 है तो कहां पे आएगा, नेगेटिव साइड पे आएगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, फिर वही काम, सबसे पहले इसको क्या करें, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो कहां पे होगा, 1 2 3 4 5. ओके, तो यहां पे होगा.
Okay, this is minus 5 by 7. Okay, so we can easily represent any number, okay, in number line by using the concept of number line. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन में आसानी से प्लॉट कर सकते हैं. अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो उनके लिए 1 यूनिट हमने चूज करना है. ओके, और अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, 1 यूनिट के बीच में डिवाइड करना है. और अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ओके, अगर माइनस में है तो माइनस में 0 और -1 के बीच में होगा. ओके, अभी देखिए अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस 7/5, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जस्ट लाइक दिस 7/5, 5 1 जा 5, 7 - 5 2. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल 5, ओके, और 1 and 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5. ओके, अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए नंबर लाइन क्या होगा, जस्ट लाइक दिस. तो इस मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमारे पास नंबर लाइन क्या होगा, 1 से ग्रेटर है और 2 से क्या है, स्मॉलर है. तो सिंपल इस तरह करेंगे, दिस इज 0. ओके, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे 0 एंड 0 1, दिस इज 2. तो 1 से ग्रेटर है. ओके, 1 से ग्रेटर है, 2 से स्मॉलर है, तो 2/5 करना है. 1 और 2 के बीच में क्या करना है, 2/5 डिवाइड करना है. तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके, 5. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. ओके, तो अभी 1 2/5 कहां पे होगा, तो हमने क्या करना है, 2/5 यूनिट आगे जाना है. तो देखिए 1 2, तो कहां पे होगा, यहां पे. दिस इज इक्वल टू 1 2/5. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए भी क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में किसी भी नंबर को, चाहे प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके, आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, बस जस्ट कीप इन योर माइंड, ये बात अपने जहन में रखें कि अगर हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा अगर पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा, चाहे कितना भी बड़ा है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 100 ओवर फॉर एग्जांपल 120, ओके, तो कुछ भी है. अगर 1000 ओवर 2000 है, अगर 5000 ओवर 10000 है, तो हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. ओके, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जस्ट आपने उसे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. मिक्स फ्रैक्शन के बाद आपके पास यहाँ पे एक होल नंबर आएगा, तो होल नंबर से आपको पता चला कि 1. ओके, और बाकी यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा उसमें आपने क्या करना है, 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर होगा, इसके बीच में होगा. फिर वही बात. ओके, फ्रैक्शन जब भी होगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि 1 यूनिट के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा. ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 यूनिट को डिनोमिनेटर के हिसाब से डिवाइड करना है. 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 2 यूनिट्स आगे मूव करना है. ओके, 1 2. तो दिस इज द फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर. ओके, वी कैन इजीली रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर लाइन. ओके, एनी रियल नंबर्स इन नंबर लाइन. ओके, तो हाउ कैन वी डिफाइन रियल नंबर. ओके, रियल नंबर्स आर सच नंबर्स व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट इन रियल नंबर लाइन. ओके, किसी भी नंबर को हम अगर क्या कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास रियल नंबर है. ओके, I will explain what are the some properties of real numbers. Okay, properties of real numbers. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रियल नंबर की क्या है, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. What is mean by closure property? Okay, if we have two real numbers, okay, if we have two real numbers, if we have two real numbers a b which are belongs to real number, अगर हमारे पास दो रियल नंबर है a और b, okay, just like for example 2 है, आपके पास 5 है, these are belongs to real number. Okay, then according to closure property, by adding these two real number a plus b must be belongs to real number. Okay, this is simple. Okay, very simple. What is mean by closure property? If we have two real number, अगर हमारे पास 2 या 3 या जितने भी रियल नंबर्स हैं, अगर उन सब रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, अगर हमारे पास 2 रियल नंबर है, उनको हमने ऐड किया तो अगेन रियल नंबर आएगा. अगर सब्ट्रैक्ट किया भी तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर आएगा. जस्ट लाइक दिस, चेक करें कि a की जगह पे
2, b की जगह पे 5, इनको प्लस करने से क्या होगा 2 + 5 which is equal to 7. As we know that 7 again is a real number. Okay, this is the closure property. Very simple. Okay, number 2, commutative property. Okay, commutative is the commutative property. Okay, what is meant by commutative property? Commutative property means if we add a plus b, this must be equal to b plus a. Okay, just like this, for example, 2 + 5 or 5 + 2, 2 + 5 7, 5 + 2 7. Okay, this is the commutative property with respect to addition. Just like the multiplication के लिए भी सही होगा. Okay, अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, a multiplied by b is equal to b multiplied by a, 3 multiplied by 5. ओके, या 5 multiplied by 3, 3 5 15, 5 3 15. तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई करेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा. जस्ट लाइक दैट, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करें, इफ वी हैव 2 रियल नंबर्स, ओके, अगर हम उन 2 रियल नंबर्स को क्या करें, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से भी अगेन एक रियल नंबर आएगा. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए भी होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगा. जस्ट लाइक दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, एडिशन के लिए भी होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगा. अगर इसका एग्जांपल किया जाए तो कोई भी एग्जांपल आप करें, फॉर एग्जांपल 2 × 7 which is equal to 14. 14 is again a real number. ओके, आपने इसको इस तरह रीड करना है कि इफ a b belongs to, ओके, this means इस साइन का मतलब क्या है, belongs to real number. Okay, by adding these 2 real numbers we are again obtain a real number. Okay, just like that, if we have 2 real numbers, if we find out the product of these 2 real number, okay, then we again obtain a real number. Just like this, 2 multiplied by 7 14, 14 is again a real number. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा. जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, अभी अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है, ओके, तो 3 रियल नंबर के पास हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगा उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, इफ वी हैव 3 रियल नंबर, जस्ट लाइक दिस, a + b, ओके, प्लस c करें या a + b + c करें. ओके, चाहे आप फर्स्ट रियल नंबर को सेकंड रियल नंबर के साथ प्लस करें और उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको c के साथ प्लस करें, या आप पहले क्या करें, b और c को प्लस करें, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, ओके, आपने उसको क्या करना है, a के साथ प्लस करना है. तो ये हमेशा सेम होगा. और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम होगा कि a multiplied by b, ओके, multiplied by c is equal to क्या होगा, a multiplied by b multiplied by c. ओके, अगर एक एग्जांपल किया जाए तो कोई भी एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल 2 + 5 + 7 is equal to, ओके, 2 + 5 + 7. चेक करें जरा, 2 + 5 7, 7 + 7 is equal to 2 + ओके 5 + 7 12, ओके, 7 + 7 14, 12 + 2 14. ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या करेगा, होल्ड करेगा. जस्ट लाइक दैट आप क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चेक करें. ओके, तो वो भी हमेशा क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगा. ओके, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा. ओके, ओके, ऑलराइट. हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन देखें तो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी. पहला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी. तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसको किसी दूसरे रियल नंबर के साथ या प्लस करने से या माइनस करने से उस रियल नंबर के
आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना आए। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी आप सबको पता है क्या है, थिंक अबाउट इट। ओके, जीरो है। ओके, अगर हम क्या करें, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, इफ वी हैव एनी रियल नंबर, ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जीरो को रियल नंबर के साथ प्लस करें, जीरो प्लस रियल नंबर अगेन रियल नंबर। ओके, चेक करें फॉर एग्जांपल, 0 प्लस 10 अगेन 10। ओके, 0 माइनस 10 अगेन माइनस 10। ओके, इसी तरह अगर आप क्या करें, एनी रियल नंबर प्लस 0 तो अगेन वही आएगा। ओके, और अगर कोई भी रियल नंबर है माइनस ए प्लस 0 तो अगेन क्या आएगा, माइनस ए आएगा। ओके, तो हमारे पास 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ प्लस करेंगे तो हमेशा हमारे पास वही नंबर आएगा। नंबर बी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जस्ट थिंक अबाउट इट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से अगेन वही रियल नंबर आए। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप सबको पता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, सोच लिया। ओके, 1। ओके, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है ए, ओके, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ओके, अगेन क्या होगा, वही रियल नंबर आएगा। ओके, या अगर 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर के साथ तो अगेन वही नंबर आएगा, या क्या करें, किसी भी रियल नंबर के साथ 1 को डिवाइड करें तो अगेन हमारे पास क्या होगा, वही नंबर आएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। ओके, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी 0 और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम नंबर। ओके, नाम से जाहिर है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास जो इनवर्स होगा, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, इफ वी हैव ए रियल नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए के साथ हमने कौन सा ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारे पास वो 0 आ जाए। ओके, ए के साथ क्या करना है, कौन सा ऐसा नंबर हमने ऐड करना है कि जिससे ये क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब ये आइडेंटिटी होगी। ओके, तो हमारे पास क्या होगी, सॉरी, तब हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर के साथ आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो 0 के इक्वल आ जाए। ओके, तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे, -a। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, +-a इज इक्वल टू 0। ओके, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ सेम वही नंबर आपने माइनस करना है, अगर माइनस है सेम वही नंबर उसके साथ क्या करना है आपने, सेम, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो सेम वो नंबर उसके साथ क्या करना है, प्लस करना है। ओके, तो इससे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी इनवर्स है। ओके, इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, इफ r बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, a के साथ आपने क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है, ओके, कि वो क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। आपने a के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ओके, कि वो आपके पास क्या आ जाए, 1 के इक्वल आए। ओके, तो 1 के इक्वल आने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर a है ना, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 1/a, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। ओके, इसी तरह अगर आपके पास क्या है, -5 है, -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, थिंक अबाउट इट। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, चलो +5 का क्या होगा, सोचिए जरा इस पे। +5 का हमारे पास क्या होगा, 1/5 +1/5। ओके, माइनस अगर कोई भी नंबर है तो आपने माइनस को नहीं छेड़ना है। ओके, 5 का क्या होगा, 1/5, तो -1/5। ओके, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऑल राइट, सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव थ्री रियल नंबर, ओके, इफ वी हैव थ्री रियल नंबर a b c which are belongs to real number, what is mean by distributive property? okay, distributive property हमें कहता है अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, उनको क्या करना है आपने, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c के प्रोडक्ट से, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वेरी सिंपल, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करें तो a b प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करें तो a c। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल लेना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7, ओके, विच इज इक्वल टू, ओके, हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो 5 प्लस 7, ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू 2 5s are 10, 2 7s are 14, okay, 24 is equal to 24. So this property is always true for real number. Okay, thank you so much. If you have any question, free feel to ask. Okay.